So hi everyone, as you know I'm Abdul Krishi, you are watching Abdul Krishi Talks. So welcome back to another video और आज मैं कवर कर रहा हूँ एक AI हैकाथॉन जहाँ ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि प्रोफेशनल्स भी टीम बनाकर SAP और ERP के रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड बिलीव मी ये सॉल्यूशन नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते हैं कि इस हैकाथॉन में कौन कौन से सेगमेंट होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल हैकाथॉन को कवर करने वाले होंगे। एंड तक बने रहिए और चलें अब हैकाथॉन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। So the day started with our recitation from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. And then hackathon officially begin with participant introduction. A student of Artificial Intelligence from Zabist, Hyderabad. I'm currently in 4th semester. मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मैं एसोसिएट डिग्री कर रहा हूँ सिंध यूनिवर्सिटी से। So now we have participant of our hackathon. So चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, आप सोलो प्रोजेक्ट बना रहे हैं? जी सोलो प्रोजेक्ट बना तो मुझे ये बताइए कि आप सोलो क्यों बना रहे हैं आज का हैकाथन प्रोजेक्ट? जब तो बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे थे तो हर कोई बिजी लगा पड़ा था, फ्रेंड वगैरह, तो कोई आया नहीं मेरे साथ, इसलिए मैं अकेले आ गया यहाँ पर सोलो प्रोजेक्ट बनाने। So can you quickly introduce yourself and your team and also what are you building today? Myself Hamza, I'm from Mehran University, third year software engineering, and today I'm here with my team at AI Hackathon 2026, and beside me is my friend Abdullah, and there are two my teammates Aisha and Hafsa. Now these three are very proficient in machine learning and AI, and myself I am a backend developer learning to Java and Spring Boot. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो अब्दुल रफान, आप सोलो प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं और जबकि दीगर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो टीम के मिलकर ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर टीम मिलकर अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे या एक प्रॉब्लम पर इशू पर काम करे तो वो बेहतर अंदाज में जो है सॉल्यूशन निकाल सकती है? अच्छा, इसकी जो मेन वजह है ना सोलो काम करने की वो ये है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड बैकएंड दोनों हैंडल करता हूँ। तो इस वजह से मुझे सोलो काम करने में इस वजह से मज़ा आता है कि मुझे पता होता है कि मेरे हाथ में है सारी चीज़ें और मैं आपस में कम्युनिकेट करने में ईजी रहती है। इट मीन्स कि आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है टीम की नीड नहीं है, मैं खुद ही टीम के बराबर हूँ, ऐसा ही है? काइंड ऑफ। ओके, सो बेसिकली यू आर वर्किंग सोलो, व्हाट मेड यू चूज टू गो सोलो? Yeah, first of all, I believe that when you are solo, when you are alone, so you are dependent on yourself only, and only on the tools and expertise that you currently have, and it makes you go that one step ahead to actually learn stuff. So in case if I was in a team, so I would be doing just one part of the whole project. But now since I am solo, I am working on everything myself. So I will be having expertise or at least experience of working on each and everything with my own bare hands. So in case if I won't be just a specialized guy for this project. I would be doing and understanding all of the things, and it would be helping me in my future projects. So, अब हम रैपिड क्वेश्चन के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं इनके साथ। सो आपसे कुछ सवाल है, लर्निंग और विनिंग, लर्निंग, कॉफी और स्लिप, कॉफी, टीम और सोलो, डे और नाइट, डे। ओके, what problem are you focusing on in simple term? In simple terms, the focus is obviously to get the best user experience to the end user, because since I am working on this platform,
So as a developer, I can understand, but not even as a developer, I can fully understand the problems. So if I am a non-coder, I don't know anything about codes or any of the actual things that are working behind the scenes on the website. So how could I expect a normal user to understand those things? So the core problem is to make an automation system for the end user, to allow them, to help them in the daily day-to-day problems that might arise when they are working on this platform. Okay, so can you introduce yourself and what is your role in this today's hackathon? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली बोगानी है। मैं एक्चुअली नेट2एप्स की एक प्रोडक्ट कोडबॉट और कन्फिगबॉट का फाउंडर हूँ। हमने ये ERPs की कन्फिग स्टेट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बनाई है। हमारे पास 4 फ्लेवर्स हैं इस प्रोडक्ट के। एक SAP में चलता है, एक सर्विसनाउ में, डेफोर्स में, वर्कडे में, और ये कंपनीज को हेल्प करता है कि किस तरीके से उनकी डे टू डे मेंटेनेंस हो या इम्प्लीमेंटेशन में वो किस तरीके से हेल्प करता है। So basically, what was the main goal behind organizing this hackathon? Yeah, exactly that. That we are trying to see that how much people are passionate about AI, specifically in our Hyderabad. जो our very इसका जो own मेन people. गोल है ना हैकाथॉन रखने का, वो यही है कि एक तो हम अपने खुद की जो ERP रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको मतलब AI से रिलेटेड किस तरीके से सॉल्व करें। जैसे AMS होता है, जैसे हमने बताया था कि जो सपोर्ट सिस्टम है उसको किस तरीके से मज़ीद शेयरिंग कर सकें AI से रिलेटेड, जैसे ह्यूमन एफर्ट कम से कम जो हमारे अपने प्रोडक्ट के थ्रू हो। सही, ये सबसे बड़ा मेन गोल, ताकि जाहिर सी बात है जो भी हमें ये देगा AI से रिलेटेड हम उसको फर्दर अपने उसमें प्रोडक्ट में आगे मूव करेंगे। दूसरा ये है कि नए टैलेंट को भी हमें एक्सप्लोर करना है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है जो AI से रिलेटेड जो माशाल्लाह इतने सारे पार्टिसिपेंट आए हैं कैंडिडेट्स, उनको फिर जो भी फाइनलिस्ट होगा फिर हम उसको लॉन्ग टर्म उसमें अपने साथ रखेंगे। सो मोहम्मद कासिम हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, और ये भी नेट2एप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनसे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े फ़नी हैं। तो इनसे पूछेंगे जो ऑफिस में आपको जो कॉफ़ी मिलती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक रखती है या रात की नींद? ऑफिस की कॉफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, क्योंकि जब तक हम कॉफ़ी नहीं पीते तब तक हमारा जो है ना ब्रेन जो वो ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहा होता है। तो थॉट्स वगैरह नहीं आ रहे होते हमारे पास। कॉफ़ी चाहिए होती है ज़रूर। अच्छा, डू यू सीक्रेटली होप समवन फेल और एवरीवन शाइन टुडे? मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे शाइन करेंगे। जाहिर सी बात है हम सारे तो यहाँ से हायर नहीं कर सकेंगे, जो शाइन करेंगे बेहतर शाइन करेंगे, हम वो फिल्टर आउट कर देंगे यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच ब्रदर। डॉक्टर अदनान, आपसे आज कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे रिगार्डिंग हैकाथॉन। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव होते हैं कि भाई हम लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड द सीन तो वो बहुत इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, बट हैकाथॉन्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि हैकाथॉन किन स्टूडेंट्स के लिए हैं और कौन इनमें पार्टिसिपेट करे? हाँ, थैंक यू। बड़ा दुखती रंग पे हाथ रखा है आपने। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल सा है। पाइपलाइन जनरेट करता है ये आपका गिनीमिया। अभी नेक्स्ट आता है, इसको हम कहते हैं पीयर रिव्यूज। ये पीयर रिव्यूज आप स्टूडेंट्स कर सकता है, टीचर कर सकता है। स्टिल द एक्चुअल इंडस्ट्री जिसको हम या तो इनवाइट करें कि आप बताएं इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, जो कि इंडस्ट्री के पास इतना वक्त नॉर्मली नहीं होता, या फिर इस सॉल्यूशंस को लेके जाया जाए ऑनलाइन ही, अब बहुत आसान है, इंडस्ट्री में इवेलुएट करवाया जाए और इसको ग्रेडिंग करवाई जाए कि आपका एफिशिएंसी के हवाले से कितना ज़्यादा आपका एफिशिएंट सॉल्यूशन है या कुछ भी ऐसा। लेकिन चूंकि जब ये नहीं हो पाता तो आपके पास एक ही जगह बचती है, दैट इज कॉल्ड हैकाथॉन। ब्रिंग योर ऑल पोटेंशियल हियर, ब्रिंग योर रिसोर्सेज हियर, गिव योरसेल्फ। और ये एंटरप्रेन्योर्स करवा रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉक्सीज बननी चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, सब ऑफिसेज होने चाहिए, और इनके साथ मेरे ख्याल में एक इंगेजमेंट होनी चाहिए, एक MOU होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का, बहुत खुला एक होना चाहिए, बहुत ओपन, कि वी वांट टू होल्ड लाइक बाय एनुअली या एनुअली एक हैकाथॉन करवाएंगे। वील ब्रिंग द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड यू गिव अस स्टूडेंट्स, यू गिव अस इंफ्रास्ट्रक्चर, you give us machines, everything, we will be there to bring those। और ये बहुत हॉट है इसलिए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए एक्रेडिटेशन के लिए ये लाजिम हो गया है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करे, उसी में आपके FIPs बनना शुरू हो जाएंगे। ये दर्द सर यूनिवर्सिटी से हट के जा सकता है अगर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करे, लिंकेज प्रोग्राम उसका एक्टिव हो, और ऐसे इदारे जिस तरह एंटरप्रेन्योर है, ये बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं,
अगर वो इस किस्म का अपना CSR करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करें, बट किसी न किसी को अब्दुल्ला इनिशिएटिव लेना होगा, वरना ये बातें हवा में रह जाएंगी। इनिशिएटिव लेना होगा जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो और एक को लीड कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स को लीड कर रहे हैं, दे हैव टू सर्व एज अ ब्रिज, चाहे वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हो, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इकरा हमारे पास आ गई है, ज़ेबिस्ट है यहाँ शहर में, HITMS मौजूद है। सो what is missing is the vision and mindset, how to do work, that is missing. But anyways, it's wonderful meeting with you. Thank you so much, Dr. Adnan. आपने हमें time दिया। With the coding phase complete, the focus now shifts to the evaluation, where every solution will be carefully reviewed by the judging panel. Today I am here with my team Data Visits and आज का हम लोगों का एक हैकाथॉन कंडक्ट हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों को एक टास्क हम लोगों को एक दिया गया है, जहाँ पे हम लोग एक ERP सिस्टम के लिए ट्रबल शूटिंग गाइड बना रहे हैं। सो दैट इज़ द सोल्यूशन। सो बिफोर हैंड मैं आपको बताता चलूँ कि इवन दो हम लोगों ने डिफरेंट हमारे जो सोल्यूशन है उसका मॉड्यूल हम लोगों ने बना लिया, अनफॉर्चुनेटली हम उसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं। हम लोगों के पास इस तरह से सिस्टम ये चल रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे पास सबसे पहले UI है, UI बनाया गया है जावा स्प्रिंग बूट के अंदर, जहाँ पे सर्वर साइड रनिंग हो रही है। फिर वहाँ से जो दूसरा हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है हमारा फ्लास्क का, जो अभी कंप्लीट हो नहीं पाया था, लेकिन फ्लास्क पे ये था कि हम लोग उसके साथ हम अपना रेग एजेंट कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम उस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बैकएंड की साइड पे, वो हम कर रहे हैं प्लेराइट का काम ये होगा कि वो हमारे पास बेसिक ऑटोमेशन की चीज़ पे आएगा। वो दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक UI ओपन हुआ है फ्रंट पेज। अच्छा, चीज़ इस तरह से चलेगी कि लाइक मैं कोई इशू डिस्क्राइब करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कांट एक्सेस प्रॉक्सी मैनेजमेंट। मेरा माय फ्रेंड है, उसके पास वो लैपटॉप में रेग एजेंट है, तो वो आपको अभी कनेक्ट करके वो स्टेप्स भी दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास असिस्टेंट यहाँ से वर्क करेगा, अब प्रोसेस किस तरह चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास फ्लास्क के सर्वर पे, वहाँ पे हम लोगों ने उसको रन आईडी और इश्यू प्रोवाइड किया है। वहाँ से हमारे पास प्लेराइट की इंस्टेंस क्रिएट होती है, क्रिएट होकर वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, एंड देन हमारे पास एजेंट रन होता है और वो हमें हमारे जो स्टेप्स हैं उनको वापस करेगा। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है सेप इन ERP पर के ऑटोमेट कर ले जो भी टास्क हमें दिए गए थे गाइड वाली में फाइल में। तो हमने बेसिकली यही फ्रंट एंड बनाया है फास्ट API यूज़ कर सीधा हमने वहाँ से ही सर्व किया है। फास्ट API की API यूज़ करके सीधा वहाँ से सर्व कर रहे हैं इसको और सर्वर चला रहे हैं। और यहाँ पर सिंपली हमने ये किया है कि यहाँ पर पूरा ही कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीटेड इस हवाले से नहीं है कि ये पूरे टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, ये एक दो कर रहा है अभी ऑटोमेटिकली पूरे कंप्लीट। हमने यहाँ पर जो इसके पीछे स्ट्रेटजी लगाई है वो ये है कि सिंपली ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसा करेगा कि ये पहले तो लॉगिन कर देगा हमें सेप के क्या कहते हैं ERP पर। उसके बाद ये ट्रबल शूटिंग पूरा प्लान बनाएगा कि हमारे पास ये इशू है और इसको हमें कैसे टैकल करना है। तो फिर ये टैकल ऐसे करेगा कि पहले ये पूरा प्लान बनाएगा कि ये इशू कौन सा है, कहाँ पर है, और हम इसको पूरा भेजेंगे URL कौन सी है वगैरह, ये पूरी देंगे इन्फॉर्मेशन। यूज़ करा है पाइथन फ्लास्क API, और जो मॉडल्स मैंने यूज़ करे इसमें मैंने सिंगल मॉडल अप्रोच यूज़ नहीं करी, इसमें मैंने करी है मल्टी मॉडल, मतलब के ऑर्केस्ट्रेट बनाया मैंने उनका। एक मॉडल मैंने यूज़ करा है क्लाउड का, क्योंकि क्लाउड मशहूर है रीजनिंग के लिए। एक मॉडल मैंने यूज़ करा है जेमिनी का, जेमिनी मशहूर है अपनी इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मल्टी मॉडल सेटअप है, आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। मैं एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। अभी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई प्रीसेट्स आ रहे हैं 10, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रीसेट डाल दो सिस्टम के अंदर कि ये कॉमन इश्यूज हैं जो कि यूजर से होते हैं, फेस होते हैं, वो डाल दो। नहीं डालना तो आप सिंपली अपनी मर्जी से कुछ भी इधर आप पेश कर दो, जैसे मैंने सबसे पहला वाला ही कर दिया प्रॉक्सी वाला, और स्टार्ट ट्रबल शूट कर दिया। अच्छा, अब ये सिंगल यूजर के लिए नहीं है, इसमें हार्ड कोडेड चीज़ें नहीं है, तो वो आपसे हर दफ़ा पूछेगा कि आपको किस यूजर के ऊपर ही परफॉर्म करना है। तो मैं बोलूँगा मुझे साइमन F पे करना है, और इसका मैंने पासवर्ड डाल दिया जो कि मुझे मिला था। अब ये मेरा सेशन लगा हुआ था तो इस वजह से पासवर्ड आ गया, अदरवाइज ये खाली इनपुट होते हैं। अब मैंने स्टार्ट करा। अच्छा, अब स्टार्ट करा तो साइड पे मेरे पास एक आप देखेंगे राइट पे एग्जीक्यूशन लॉग आ रहा है।
एग्जीक्यूशन लॉग मुझे अपनी स्टेट जो है ना एजेंट की वो बताता है कि देखो आपका स्टेट अभी जो एजेंट का है ना वो प्लानिंग है। अभी एजेंट प्लान कर रहा है कि मुझे आगे क्या परफॉर्म करना है, टास्क अपना प्रोसेस करते रहेगा। मीनवाइल साथ में हम अपना वो देख लेना थोड़ा सा कोड लेवल पे। ये देखें, अच्छा साइड में मैंने एक वो भी खोल लिया हेडरलेस क्रोमियो इंस्टेंस। ये प्ले राइट इंस्टेंस है। अब देखिएगा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली खुद ही लॉगिन की क्रेडेंशियल डालेगा और यूजर लॉगिन हो जाएगा। Now it's time for judging panel to discuss the final results and choose the winner. And now, the moment everyone was waiting for. The first prize of 25,000 rupees goes to Abdul Rahman, who then proudly receives the winner's shield for his outstanding performance. So in the end, हमारे पास CEO हैं एंटरप्रेन्योर के, तो आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इनसे करने वाले हैं। यूँ तो ऑफिस ही इनका है, बट कुछ क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रोल क्या है इस हैकाथॉन में? बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो कि एंटरप्रेन्योर की है, ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, तो हम चाहते हैं यूथ के लिए कुछ करें। तो ये हमारा एक CSR प्रोग्राम है, उसके तहत हम लेके चल रहे हैं। तो मेरा रोल ये है कि मैं पार्टनर हूँ नेट2 ऐप का और हाइशा का बेसिकली फाउंडर हूँ। तो इसी वजह से जो है इसको हम लेकर चल रहे हैं। सर बेसिकली अब इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया हैकाथॉन को, तो बिहाइंड द सीन आपका क्या विजन था, क्या गोल था मेन, इससे हम क्या अचीव करेंगे? इसके पीछे ये था कि वैसे तो हैकाथॉन यूजुअली यूनिवर्सिटी लेवल की होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री लेवल की हैकाथॉन का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अभी हम AI के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। जैसे SAP है ERP, उसके ऊपर नेट2 ऐप काम करता है। तो रियल लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हैकाथॉन रखी थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे बहुत पैशनेट थे और सबने माशाल्लाह अच्छा सॉल्यूशन पेश किया। और हमने इसके लिए जो विनर सेलेक्ट किया वो भी एक सोलो विनर था, लेकिन रियली अमेज्ड कि वो जस्ट यूनिवर्सिटी में गया है और उसने इतना जबरदस्त जो है वो काम किया कि सब लोगों से आगे निकल गया। और इन द एंड यही पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि जो भी पार्टिसिपेंट थे वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और बहुत ज़्यादा आउटकम भी हमें नजर आया, बट क्या आपकी जो टीम थी क्या वो प्रिपेयर्ड थी इसके लिए? यस, हमारी टीम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी और इसीलिए हमने कोड रिव्यू भी किया। हमने जो है बाकायदा उनकी प्रेजेंटेशन ली, उनकी बाकायदा पिचिंग हुई है और उसको अच्छी तरह से समझा है। और हमारी टीम ने बैकएंड के ऊपर सारे प्रोसेस को चलाया है, रजिस्ट्रेशन से लेके उसका फाइनल रिजल्ट तक के पूरे प्रोसेस में टीम शामिल थी और दे वर वेरी मच रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, इन द एंड जस्ट वन लाइन फॉर दोज स्टूडेंट जो नेक्स्ट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, आपकी कनेक्शन होगा, नेटवर्किंग होगी, जितनी नेटवर्क होगा उतनी नेटवर्क होगी आपकी, और यही मैसेज था यूथ को है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।